Hi everyone, I'm Ritika. I've secured All India Rank 88 in Civil Services Examination 2018. My optional was Commerce and Accountancy. So in this video, I'm going to discuss about my strategy for Commerce and Accountancy. I have secured 330 marks out of 500 in Commerce and Accountancy paper. This is one of the highest in this year's paper. Also, as per the information that I have, after the pattern has changed, it's one of the highest. So I would like, based on my experience, I would like to share my strategy. Hopefully that helps you out. And see, first thing is why I chose this optional. Because generally people tend to change the optional if they are from technical fields. My choice was because this was my forte. Commerce was my strong field. I was All India rank 4th and CBSE Northern Region topper in 12th class Commerce. I had been to Sri Ram College of Commerce. There I had 95% aggregate and I had 3rd rank in the college. So even I had given the CA entrance, that was CPT. I had All India rank 10 at that time. And CTSE, that is Commerce Talent Search Examination, I had All India rank 10 again in the 11th class at that time. So this was one reason that commerce was my strong area. So I thought it wise to compete in my own area rather than foraying into others' arena. That was the major reason. And if we talk about the credit of my success, of getting the highest marks in commerce, that goes to the strong foundation that was laid during my 11th and 12th, that is school years and my college years, to all my teachers, those who have taught me commerce during school and college, to my mentor, Mr. M.K. Yadav sir, who guided me as far as answer writing was concerned in mains. He actually demanded Guru Dakshina that I should get the highest marks in commerce, and fortunately I was able to give him that. Also my commerce faculty, R.S. Agrawal sir, he helped me a lot in commerce optional preparation. Now talking about the pattern of papers, the subjects which are there, this is for the beginners. Those who are already preparing or maybe they have the first attempt or second attempt, they can skip this small part. For the beginners, the paper has 8 questions. So in that, first and fifth question is compulsory. So there are 2 sets, 4 questions in each set. First and fifth is compulsory. In each set we have to choose at least 1 question, and so choose the 5th question in any other set. In total we have to attempt only 5 questions out of those 8. This I am telling because अपने मेंस के एग्ज़ाम्स के दौरान I had met a person जिन्होंने फर्स्ट सेट में से ही 5 के 5 क्वेश्चंस कर दिए थे and they were not able to clear the mains. So please read the instructions carefully. So that was the general advisory to all. Now talking about the composition of paper 1 and paper 2. So optional paper 1, it's generally practical oriented. It has financial accounting, income tax, financial management, cost accounting, and audit and financial services. These are the major subjects which are covered under paper 1. So in paper 2 we have 4 subjects. First is organization theory, second organization behavior, third human resource management, and fourth is industrial relations. In GS paper 2 we have international relations. So here we also call it IR, but this is industrial relations in commerce paper 2. Now talking about the book list. As I've told you, I already had a stronghold. So I used to refer to my 11th and 12th class books for the basics and my graduation books, because those were the books that I had read at least 4-5 times. So अगर मैं उनको अच्छे से दोबारा refer करती, so it was easier for me to recall things rather than going for a new source. Another thing is that I had referred to Ranker's classes notes for that commerce paper. Now paper 1 strategy. पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है.
सो इट्स लाइक मैथमेटिक्स जहाँ आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं, देयर आर थियोरी क्वेश्चंस एज वेल. There's a certain ratio of practical and theory which comes in paper 1, which keeps on varying every year, so there cannot be a set pattern. So you should prepare both for practical as well as theory for paper 1. A little tip that I would like to give you for more marks is try to attempt practical questions if you are well versed with that, because theory में there's a scope of subjectivity, तो उसमें marks कटने का chance होता है. But in practical, if you are very well versed with the formula, your steps are correct, your final answer is correct, you're bound to get more marks. There is very less scope for subjectivity in that. For that, so that आप प्रैक्टिकल पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, उसके लिए एक प्री रिक्विजिट चीज़ है, और वो क्या है कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. योर कॉन्सेप्ट्स शुड बी वेरी क्लियर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए. अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो और वो अच्छे से याद हो. समझ तो लिए, बट उनको आप अच्छे से याद भी करेंगे, मेमोराइज करेंगे, आपको रिवाइज करना है. और इन सब चीज़ों के साथ साथ यू नीड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज़ मस्ट, बिकॉज वो प्रैक्टिकल है. आपने समझ लिया, कर लिया, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ना आपकी स्पीड बनेगी, तब तक ना आपका कॉन्फिडेंस बनेगा. उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं और ख़ुद भी आराम से बैठ के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स के, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड वन. तो आपको ईजिली अवेलेबल उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे अगर आपकी ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक्स हैं तो. Practice is the key. As we say, practice makes man perfect. So do practice a lot, for speed. Because 3 घंटे में आपको वो पूरा पेपर कंप्लीट करना है, पेपर 1 का, एंड देयर आर लॉट ऑफ बिग न्यूमेरिकल्स. ऑल्सो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई बार ना पेपर में स्पेस कंस्ट्रेंट हो जाती है, स्पेशली इन द क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनानी है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट भी बनानी है, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, वर्किंग स्टेटमेंट्स भी होती हैं. सो एक बार पीछे पेज पलट के ज़रूर देख लेना कि कितनी स्पेस मिली है आपको, उस हिसाब से आप क्वेश्चन उसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा. न्यूमेरिकल्स में कभी कभी किसी क्वेश्चन में हो जाता है, अदरवाइज यूपीएससी गिव्स एडिक्वेट स्पेस फॉर एवरी क्वेश्चन. दैट इज़ फॉर पेपर 1. और पेपर 1 में अगर आप देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज जो मैंने आपको सब्जेक्ट बोला था, इट हैज़ सर्टन कन्वर्जेंस विद जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स. जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आरबीआई ने, सेबी ने कुछ डिसीजंस लिए, या फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ डिसीजंस हैं, सो यू कैन यूज़ दैट करंट अफेयर्स नॉलेज इन फाइनेंशियल सर्विसेज सब्जेक्ट. ऑल्सो ऑडिट में भी आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि बैंकिंग में जैसे एनपीएस राइज कर गए थे, वी हैव, तो आईसीएआई का न्यू इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेटअप हुई थी, उसके बारे में आ सकता है, एनसीएलटी, एनसीएलएटी के बारे में आ सकता है. सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज. सो देयर इज़ सर्टन कन्वर्जेंस. जनरली लोग कहते हैं कि कॉमर्स का कोई कन्वर्जेंस है ही नहीं करंट अफेयर्स के साथ या फिर जीएस के साथ. सो दीज आर सर्टन एरियाज़ जहाँ पे आपको कन्वर्जेंस मिलेगा. इवन इन इनकम टैक्स में बजट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज फार एज इनकम टैक्स इज़ कंसर्न्ड. बिकॉज अच्छा, जब आप इनकम टैक्स का पेपर लिख रहे हैं एज फार एज यूपीएससी इज़ कंसर्न्ड, तो आपको एक रेवेन्यू ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. सो फॉर एग्जांपल, अगर हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, या एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं, वो डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, एटीसी की बात कर रहे हैं, सो यू हैव टू फाइंड द रैशनल बिहाइंड दैट. वो ग्रेजुएशन वाला सोच नहीं चलेगा उसमें कि ग्रेजुएशन में आप सोचते थे कि ठीक है, आपने कुछ पॉइंटर्स लिख दिए कि क्या क्या उस डिडक्शन में या एग्जेम्पशन में आ रहा है. हियर यू हैव टू राइट रैशनल एज वेल. That's the basic difference between your graduation answers and the answers that you write in civil services examination. So keep that in mind, that here analysis of those facts matters a lot. अगर आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने रेशो एनालिसिस किया, कैश फ्लो बनाई, एनालिसिस वुड मैटर. तो एनालिसिस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा. सो दैट वाज अ ब्रॉड स्ट्रैटेजी अबाउट पेपर 1. नाउ विल कम टू पेपर 2. पेपर 2 में जैसा कि मैंने बोला, थ्योरी है, एचआरएम है, ओबी, ओटी एंड आईआर, 4 सब्जेक्ट्स आर देयर. तो उसमें हमारा करंट अफेयर्स के साथ काफ़ी कन्वर्जेंस बैठ जाता है. इकोनॉमिक्स के साथ कन्वर्जेंस आएगा. जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हमने बात की, अब करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, देयर आर 4 कोड्स कमिंग अप, मिनिमम वेजेस का, सोशल सिक्योरिटी का, हेल्थ कंडीशंस का एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का. सो देयर इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ करंट अफेयर्स with industrial relations. Also even HRM,
अगर आप जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आता है कि बिग कॉर्पोरेट्स उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज की है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने न्यू पॉलिसी लाई है। सो इवन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, इवन PSUs को आप स्टडी कर सकते हैं, उनकी केस स्टडीज़ की, उनकी गुड एग्जाम्पल्स आप यू कैन ऑलवेज कोट। इट्स ऑलवेज वेलकम दैट यू कोट सर्टन एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़। सो वो करेंगे, दैट वुड एनरिच योर आंसर। ऑल्सो सिंस ये थियोरीज़ हैं इन OB and OT, you'll find लीडरशिप थियोरीज, मोटिवेशन थियोरीज, सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दोज थियोरीज। आपको उनके पॉजिटिव, नेगेटिव्स, उनका एवोल्यूशन सारा पता होना चाहिए, उसका क्रिटिसिज्म, और फिर अ बैलेंस्ड व्यू ओवरऑल फॉर दैट थियोरी। अच्छा, एक और टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फॉर पेपर 2 इज़, सिंस इट्स थियोरी, वहाँ पेपर 1 में तो मैंने आपको बोला कि आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लीजिए, दैट इज़ मोर स्कोरिंग, बट पेपर 2 में प्रैक्टिकल तो है नहीं। तो पेपर 2 के लिए आप ऐसे कुछ सेट थियोरीज़ वाले क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। मान लीजिए उन्होंने ग्रिड थियोरी पूछ लिया, या फिर उन्होंने मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर का क्वेश्चन पूछ लिया। द क्वेश्चंस विच आर वेरी स्पेसिफिक थियोरी में, कि किसने दी वो थ्योरी, क्यों दी, उसके क्या अच्छे पॉइंट्स थे, उसमें क्या लिमिटेशंस थी, और फिर आगे कुछ नेक्स्ट थियोरी ने अगर उसको कवर अप किया हो, बिकॉज ये सेट पैटर्न है और इट्स अ बिट ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। इसमें मार्क्स कट करने का स्कोप बहुत कम होता है। अगर क्वेश्चंस ओपन एंडेड हों, दे आर टॉकिंग अबाउट योर ओपिनियन, देयर कम्स अ स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी, और उसमें मार्क्स मिलने का स्कोप कम होता है। मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, दैट डिपेंड्स whether the views of the examiner are matching with yours or not. But in these questions पता ही है मेयर्स ब्रिग टाइप्स इंडिकेटर के आपको वो 4 पोलर ही लिखने हैं, उसके 2 पार्ट्स होंगे, तो टोटल 16 ही आएंगे। So be specific as far as you can in your answers. That's the key for more scores. Also try to interlink these 4 subjects. अब ऐसा तो है नहीं वो ऊपर हेडिंग लिख के भेजेंगे UPSC वाले, ये IR से क्वेश्चन है, ये HRM से क्वेश्चन है, ये OB से क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं। तो क्वेश्चंस तो इकट्ठे ही भेजेंगे वो, राइट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस स्ट्रीम का क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। मेजरली आपको उस सब्जेक्ट से ही आंसर्स लिखने होंगे, बट सिर्फ उस सब्जेक्ट से नहीं, मेजरली। तो उसमें हम बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं OB, OT, HRM, IR के, so try to interlink, because these are not mutually exclusive subjects. Try to interlink these subjects and try to integrate your GS पेपर 3 या गवर्नेंस की कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हों, वो आप इसमें ज़रूर लिख सकते हैं। या गवर्नमेंट ने, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम HRM की बात ले लें, आप सिविल सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की, ट्रेनिंग प्रोसीजर की, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की। सो यू विल फाइंड पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ योर GS preparation and commerce preparation. Don't think that these are mutually exclusive. Now coming to the answer writing part. So answer writing part of paper 2, that is जिसमें थियोरी है, उसमें यही चलेगा कि फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ट्राई डेवलप अ हैबिट कि आप उसको अंडरलाइन कर लें कि उन्होंने मेजरली क्या क्या क्वेश्चन पार्ट्स उसमें पूछे हैं। एट टाइम्स जब आप इतना जल्दी में आप आंसर लिख रहे होते हैं, टेंड टू स्किप सर्टन सब पार्ट्स जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मेक अ हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग, सो आपका फोकस उस पर रहेगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, जो हो सकता है उस थियोरी का बैकग्राउंड हो, या आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देनी हो, तो आप उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर को। देन यू स्टार्ट addressing the major components of that question. It could be positives and negatives of a theory. It could be your views about certain procedures. After that, I would suggest कि आप अगर कोई डायग्राम वगैरह डाल सकें उस क्वेश्चन में, अगर तो थियोरी है उसकी डायग्राम होगी, अदरवाइज यू कैन मेक योर ओन डायग्राम। For that I had attended QEP course of my mentor MK Yadav sir. तो उसमें क्या है, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, सर्टन कीवर्ड्स बताते हैं, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, डायग्राम होती है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप GS पेपर 4 के लिए सर्टन डायग्राम्स इट कैन बी ऑफ 3-4 टाइप्स। आप स्टेक होल्डर बेस लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, उसमें क्या आएगा, वर्कर आएगा, फिर मैनेजर आएगा, ट्रेड यूनियन आ सकती है, गवर्नमेंट आ सकती है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप इन स्टेक होल्डर्स के थ्रू आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर होता है टेम्पोरल आंसर। टेम्पोरल में वी टॉक अबाउट द टाइम फ्रेम। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ही ले लीजिए, या लेट्स नाउ टेक HRM, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का तो आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल।
HRM में मोटिवेशन हो गया या लीडरशिप हो गया, उसमें हम कुछ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लेते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेते हैं. सो दीज आर टेम्पोरल वंस. एंड देन यू हैव impact on certain areas of society. That question could deal with CSR or it could deal with your organization behavior. तो उसमें क्या है, आप बता सकते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट इंडस्ट्री को हो सकता है, फिर गवर्नमेंट को हो सकता है, कॉमन सिटीजन्स को क्या इम्पैक्ट होता है. सो दैट इज़ व्हाट इम्पैक्ट विल बी ऑन वेरियस लेवल्स. इनफैक्ट लेवल्स पे भी आप खेल सकते हैं. सो फोर्थ वन वुड बी लेवल, कि लोकल लेवल पे ये रिजल्ट होगा, then state level, then you can go to national level, international level. For example, even in IR we have International Labour Organization, वो international level पे काम करती है. फिर अगर आप OB या OT में बात करेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ सकता है. ऐसा आ सकता है कि आजकल मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है या फिर फ्रैक्टल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, अमीबा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप उसको करंट अफेयर से सप्लीमेंट कीजिए. डू गिव एग्जाम्पल्स, डू गिव केस स्टडीज़. आप किसी कंपनी का मोटो है या उनकी हायरिंग पॉलिसी है, आप वो डिस्कस कर सकते हैं. एंड end your question with a way forward, with a conclusion, with a balanced view, something that can take that answer, take that theory forward. So that would be a broad holistic view of answer writing as far as paper 2 is concerned. So in this video I had discussed one, why I had taken commerce and accountancy. Second was the paper pattern. Third was the syllabus of the paper. Fourth was the book list, and fifth was the strategy of attempting that paper. Hope that this video helps you. Thanks a lot.